to practice today? Again, like last time, like last practice session, would anybody volunteer? Would anybody like to volunteer to share their screen and then solve the whole question? Is anybody confident enough? Don't worry if there will be issues in between, we'll help. Anybody? Like last time, class performance marks will be added to your final assessment. Still no one wants to volunteer? So let's start. It says that we have to develop a spreadsheet to conduct the following regression analysis by utilizing methods of least square. जो कल हमने method किया था, that is called method of least squares, ordinary least squares. Develop a spreadsheet to calculate estimated values from the given information. So there's a table, years, actual output and estimated output. Generate randomly the values of actual output using rand function between 90 and 130. So instead of giving the x and y variables, here one of the variables is given, that is years, and the other variable has to be generated randomly between 90 and 130. Okay, and then they have to be fixed before using them as actual output. Then further on, we have to draw a graph and then what should be the estimated yield. Okay, so let's start. Pehle we are given years, 1985 till 1993. Okay, then next column is actual output and then estimated output. For actual output, उसने बोला you have to generate random numbers between 90 and 130. So what is the formula? Equal to rand between. Equals to rand between, right? Equals to rand between 90 130. Okay, we'll generate 9 numbers. Then how do we fix them? किसी को याद है? How do we fix these numbers? These are volatile. कैसे कर सकते? कॉपी करके कॉपी करके फिर Paste values only. वैल्यूज ओनली कॉपी तो एक्चुअल आउटपुट में के पेस्ट ऑप्शंस में वैल्यूज ओनली. ठीक है, अब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं. वन ऑफ देम विल बी एक्स, वन ऑफ देम विल बी वाई. आप लोगों को क्या लगता है विच वन विल बी एक्स, विच वन विल बी वाई? यस चेतन? यस चेतन? बाय मिस्टेक. ओके, हाँ बोलो, क्या लगता है कौन सा एक्स होगा, कौन सा वाई होगा? कौन सा? एक्चुअल आउटपुट x होगा और एस्टिमेटेड आउटपुट y होगा. नो 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 नो, एस्टिमेटेड आउटपुट तो वो होगा जो हम रिग्रेशन इक्वेशन यूज करके एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, उसको तो छोड़ दो. आउट ऑफ दीज टू, ईयर्स एंड आउटपुट, एक एक्स होगा एक वाई होगा. मैम आई थिंक ईयर्स वाई होगा और एक्चुअल आउटपुट एक्स होगा. वाई?
Ma'am, because we can easily plot the on y-axis the years, and actual output can be drawn. नहीं we मैम, can we उल्टा can होएगा मैम। plot. तो वाई होंगे वो इंडिपेंडेंट है, और जो एक्चुअल आउटपुट है वो डिपेंडेंट है। Correct. Very good, Vedant. Actual output is dependent on years. Years तो जो है इस साल 2021 है, next year will be 2022. That cannot be changed. ठीक है, but we can say, suppose हम बोलें कि पिछले 10 सालों में आउटपुट जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है, तो हम बोल सकते हैं ना कि नेक्स्ट ईयर में करंट ईयर से ज्यादा ही होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ट्रेंड इज। अच्छा, इस टाइप के एनालिसिस को बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन आपको बोले रिग्रेशन एनालिसिस, चाहे बोले टाइम सीरीज एनालिसिस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। वन ऑफ them will be which is independent. It will independently keep on changing, but output, we can show output to be dependent on year. That means we can show output, we can predict output depending on the year once we make a regression equation. All right, अब x पता चल गया, y पता चल गया, अब तो सब आसान है। बताओ क्या क्या करें, बताते जाओ। अभी भी किसी को स्क्रीन शेयर करके करना है। आई एम टेलिंग यू, ये मार्क्स मैं ऐड करूंगी। गुड क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स एंड में जाके ऐड होंगे। स्टिल किसी को स्क्रीन शेयर करके कोई इंटरेस्टेड है? नो, चलो फिर बताओ, मुझे बताओ। Ma'am, I'll do. किसने बोला? अनन्या? किसने बोला? Yes, ma'am. ओके अनन्या, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Ma'am, just a second. बाकी एवरीबडी प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग इट। इसके बाद तुम्हें पता ही है क्या करना है। रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट टू वैल्यूज, find out those values, then write the equation, find out correlation coefficient, find out estimated output, then make the graph. मैम तो एक्चुअल आउटपुट y हुआ ना, Yeah, है ना? yeah. Ananya, we're waiting. Ma'am, I'm just plugging in my laptop. Just a minute. बाकी सब प्लीज वेट नहीं करो, कल हमने किया था, सेम मेथड फॉलो करना है। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। और जो भी मैं क्लास में करा रही हूँ, जिस अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुम या तो मुझसे एक्स्ट्रा क्लास लेके पूछो, बट साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। मैं किसी भी दिन टेस्ट अनाउंस कर दूंगी। अब एक्सेल के सारे क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स नहीं होंगे। Ma'am, it is asking for permission from you व्हाट परमिशन? that it will make me the main presenter and something. मेरे पास तो ऐसा, एक बार फिर से ट्राई करो। Is it visible?
Why are you writing the actual output on your own? Now I thought that we have to copy the same that you wrote. No, you have to generate random numbers on your own. And keep your camera on, Ananya. This is the time. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. अनन्या, रैंडम नंबर्स कहीं और जनरेट करना है और इस कॉलम में आके फिक्स्ड रैंडम नंबर्स करने हैं. What is the formula, people? Rand between. It is showing it in the next column, but it is not. And secondly, 80 to 100 क्यों किया? उसमें क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया 90 and 130. Ma'am, for fixing, I have to press Fn and F4, right? तुमने लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं किया क्या, अनन्या? मैम यहाँ तक किया था. नो 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 नो, आई मेंट जिसमें हमने मीन मीडियन वगैरह निकाला था, वो वाला क्वेश्चन. उसमें रैंडम नंबर्स जनरेट करके उन्हें फिक्स कैसे करते हैं? कॉपी करके पेस्ट करते हैं, पेस्ट वैल्यूज. वापस आओ करंट शीट पे. करंट शीट कॉपी करो इन्हें सबको इकट्ठा. सिलेक्ट ऑल. Please start using your keyboards to the maximum. Click on 104. Control Shift and down arrow key. Control Shift and down arrow key. Control C. Yeah, click there. This next in cell B2. Click on cell B2. Right click. Paste values. Second option, values. Yes. Delete the extra ones. Okay, now you have actual values. These are your y weight, these are your y values, here's are your x values. Find out. अब इसके बाद क्या करना है बताओ? Estimated values using the regression formula. तो उसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी. उसके लिए क्या क्या चाहिए? A, B. हाँ, तो निकालो फटाफट 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 निकालो A and B. आई एम श्योर बाकी सब तो काफी आगे पहुंच गए होंगे. कहाँ तक पहुंचे? मैंने कर लिया. मैम हो गया पूरा. पूरा हो गया? Yes. Including the graph. Yes ma'am. Yes. And have you people found out the estimated value of output for the year 2000? It's in the 2000. question itself. Okay, I'm finding that. No ma'am. Okay. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, देखो. राइट, ए के लिए इंटरसेप्ट में यू एडेड नोन वाइज, उसके बाद नोन एक्सेस भी तो डालना है. नेक्स्ट. क्या हो रहा है? अच्छा, एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक हियर. नहीं अनन्या रुको. नहीं अनन्या, नो अनन्या, नो.
आई मींट अनन्या ने जो गलती की थी उससे मैं तुम्हें कुछ सिखा रही थी। हम जो लिंक करते हैं ना, हम रेफरेंस देते हैं, जैसे इक्वल्स टू सेल B2 B4, कोई भी सेल हम सिलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्ट किसी और शीट में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उसी शीट में करना है। आप किसी और शीट, जैसे इसने क्या किया था, इससे पहले वाली शीट में जाके कुछ क्लिक कर दिया था तो वो सिलेक्ट हो गया था। सिमिलरली हम किसी और वर्कबुक में भी कर सकते हैं। तो यू हैव अ सेपरेट एक्सेल फाइल ऑल टुगेदर, उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज कैलकुलेटेड है जो आपको यहाँ पे चाहिए, आप वो उस पे भी, उसे भी खोलकर उसके भी किसी सेल पे क्लिक करोगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। बट कैसे? वंस यू रिटन इक्वल्स टू, उसके बाद आप जहां पे भी क्लिक करो वो सिलेक्ट होगा। जैसे ही आप इक्वल्स टू लिखोगे उसके बाद जहां पे भी क्लिक करोगे किसी भी फाइल में वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? और जब वो सिलेक्ट होगा तो उसका पूरा नाम आ जाएगा कि दिस फाइल, दिस शीट एंड देन दिस सेल। अगर सेम शीट में होगा तो सिर्फ सेल एड्रेस, किसी और में होगा तो शीट एंड फाइल नेम, शीट नेम, सब कुछ आ जाएगा। हाँ अनन्या, क्या हुआ? आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन अनन्या? बी कैसे निकाला? बी के लिए फॉर्मूला है स्लोप equals to slope, known y's में all the actual output values, known x's में years values. It is not a formula. You cannot select any other cell. You've written some text. So after the text, you have to write it. You cannot give the cell address. अच्छा, इसमें स्लोप सबका पॉजिटिव आया है क्या? जरूरी नहीं है, वैसे तो रैंडम नंबर्स है, किसी का पॉजिटिव आ सकता मेरा है। नेगेटिव है मैम। हाँ, तो नेगेटिव मतलब द लाइन वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, द रिग्रेशन लाइन मैम वुड बी वैसे डाउनवर्ड। नेगेटिव था, वैसे नेगेटिव था जब हमने 2020 डाला तो वो पॉजिटिव हो गया शायद। 2020 को फिर अलग से लिखो, उस डेटा में ऐड मत करो। द सिस्टम्स आर बीइंग आर गेटिंग ठीक है। स्मार्टर बाय द डे। तो वो जैसे हम ऊपर 2020 लेते हैं वो उससे भी सब में इंक्लूड कर लेते हैं, बट आप उसको फिर अलग से लिखो। अच्छा, ओके तो मैम। इसका क्या है? स्लोप है पॉजिटिवली स्लोपिंग, तो दिस लाइन वुड बी अपवर्ड, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, बट इसका इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। कैन यू पीपल फिगर आउट व्हाट डज इट मीन? इसकी ए वैल्यू इज नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? हम वो अनंत, एक्स एक्सिस पे कट करेगा, इसको एक्स एक्सिस पे कट करते फिर नीचे जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा। करेक्ट, गुड। तो वाई एक्सिस पे वो नीचे से स्टार्ट करेगा, ओरिजिन के भी नीचे से वो स्टार्ट करेगा। तो इंटरसेप्ट इज नेगेटिव मतलब ओरिजिन के नीचे से वो लाइन स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइन, बट स्टार्टिंग बिलो द ओरिजिन। Just give the two arrays. Two arrays मतलब you can give any of them पहले, चाहे तुम years पहले दो, चाहे तुम आउटपुट पहले दो। Now calculate estimated values. जब तक ये अनन्या कर रही है, कोई एक कोई भी और ट्राई करके देखो कि अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो क्या आंसर्स चेंज होंगे? अगर एक्सेल बॉड मास फॉलो करता है तो आंसर्स चेंज नहीं होंगे। अगर वो ऑर्डर फॉलो करता है, जिस ऑर्डर में लिखा है, तो आंसर्स चेंज होंगे। प्लीज चेक समबडी।
Ma'am, we have to multiply into 104 or the year. a इंटू बी एक्स होता है, a प्लस बी एक्स होता है ना, x क्या है यहाँ पे? अभी अभी फॉर्मूलाज में हमने डाला है नोन वाइज एंड नोन, हाँ सही है। अनन्या, अच्छा कोई देख रहा है अनन्या क्या कर रही है, क्या गड़बड़ कर रही है ये, क्या ये सही कर रही है? मैम फॉर्मूला कॉपी करने के लिए बस ड्राफ्ट करना है। हाँ जी, एक एक करके, समझ नहीं आया, फिर से बोलो। Ma'am, she repeats formula again and again. She just बट used बैक the कर दे। English. You don't have to give the formula again. मतलब अनन्या क्या तुम 9 टाइम्स इस फॉर्मूला को रिपीट करोगी? मैम मैंने वो कल ट्राई किया था FN और F4 से, मेरे उसमें डॉलर साइंस नहीं आ रहे। तो मैंने बोला था 4 के ऊपर भी डॉलर होता है, उससे कर दो। और वैसे अभी करके दिखाओ, इसे हटाओ, फर्स्ट सेल पे जाओ, इक्वल्स टू बेटा हटाओ, हाँ डबल क्लिक करो, B12 पे करो, हाँ अब F4 प्रेस करो, F4 मेरे को प्रेस करके तो दिखाती, हो तो गया। मैम ये डबल डबल आ रहा है। क्या डबल डबल आ रहा है? यहाँ पे पहले इस B $13। This means B column 13th row is fixed. So that particular cell is fixed. ऐसे ही आना चाहिए। उसको पहले वाले में से भी डॉलर हटाओ और F4 से करके देखो, हाँ सही है, एंटर। डबल क्लिक करती तो भी सारे आंसर्स आ जाते। अब ग्राफ बनाओ। रिग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप लोग कर सकते हो सॉल्व। यस मैम। मैम इसमें बता दो क्या करना है। कोई और बताओ, गाइड करो इसको क्या करना है। नहीं, कौन सा टाइप का चार्ट लेना है बताओ। कौन सा चार्ट लेना है? Just a second, ma'am. I don't remember the name. अभी इतने सारे लोग बोल रहे थे मैम हमने कर लिया, बताओ। Scatter. स्कैटर, नॉट बार, स्कैटर। स्कैटर विद लाइंस, कोई भी कर लेना, स्मूथ लाइंस, कैसी भी लाइंस चलेगा। सेकंड वाला कर लो विद मार्कर्स। ओके, अब सिलेक्ट डेटा, हाँ ऐड, इसको छोड़ दो, चार्ट रेंज छोड़ो, ऐड, हाँ बताओ अब क्या करना है इसको। जिन लोगों ने चार्ट बना लिया प्लीज हेल्पर। पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे। सीरीज नेम में क्या डाले वो? ओके, दिस इज द एक्चुअल। अगर एक्चुअल आउटपुट के लिए मैंने तो एक्चुअल आउटपुट। ये कहाँ गए अभी? कौन? चेतन और रचित शायद बोल रहे थे मैम हमारा हो गया, हमारा हो गया। कहाँ गए दोनों? मैम चार्ट तो मेरा अपना भी बना आ गया। अपने आप ही? अच्छा, और अगर अपने आप नहीं आया बाय चांस टेस्ट के टाइम पे तो तुम क्या करोगे चेतन? मैम तो ये भी आता है। हाँ तो उसको गाइड कर दो फिर। सीरीज एक्स की वैल्यूज होंगी आपके वाई, और वाई की वैल्यू होंगी एक्स। क्या? मैं वही तो बताया था आपने कल। क्या बताया था, फिर से बोलो। सीरीज एक्स की वैल्यूज क्या होंगी? जो भी हमने एक्चुअल आउटपुट
नो बेटा नो, x क्या थी हमारे ईयर्स, नहीं अनन्या यू हैव टू सिलेक्ट द ईयर्स, don't click anyway, just select the years. Ma'am, the Select the years from 1985 to 1993. Yes. Now series y values, remove this one, first remove this. Now select actual output values, you don't even have to write equals to, वो अपने आप ले लेता है. Okay, okay, then add. इस बार name would be estimated values, estimated output. Rhythm mic mute करो. Sorry. X values years, y values edit. नो एस्टिमेटेड वैल्यूज, अगर हम फिर से एक्चुअल को ही लिख देंगे तो फिर तो हमारी एक सीरीज बन के आ जाएगी, एक लाइन बन के आ जाएगी. ओके. इसके बाद क्या करें, इसका चार्ट देखकर बताओ इसको क्या क्या करने की जरूरत है. लेजेंड्स लगा सकते हैं, लेजेंड डाल सकती है, चार्ट टाइटल डाल सकती है, और एक्सेस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं. मैम, एक्सेस कम कर सकते हैं ना, जैसे अगर इसमें 100 ही है तो 100 डाल देते हैं. कहाँ, वो कैसे करते हैं. मैम ये 2 मिनट, चार्ट डिजाइन्स में ऐड चार्ट एलिमेंट्स, एक्सेस पे जाके मोर एक्सेस ऑप्शंस. और अदरवाइज यहाँ पे चार्ट पे अनन्या वाई एक्सिस पे डबल क्लिक करो, वाई एक्सिस की जो वैल्यूज है ना, किसी भी वाई एक्सिस, व्हाट आर दी एक्सेस पीपल, डबल क्लिक करो इस पे. नहीं सही है. चारों में से क्लिक करके दिखाओ क्या क्या ऑप्शंस है, एक्सेस ऑप्शंस दिखाओ क्या है. हाँ, बाउंड्स में मिनिमम डालो तुम 80, 100 नहीं डाल सकते चेतन, बिकॉज उसकी वैल्यू 100 से भी कम भी है, 92 भी है, तो 90 डाल सकते हैं. ठीक है, बस इसे क्लोज कर दो फॉर्मेट एक्सेस के ऑप्शन को. चार्ट टाइटल पूरा लिखो, रिग्रेशन, लेजेंड ऐड करो, एक्स और वाई एक्सिस के नेम्स ऐड करो. क्या है एक्स एक्सिस पे, ईयर्स. वाई एक्सिस पे आउटपुट, एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों है ना, सो यू हैव टू राइट जस्ट आउटपुट. लेजेंड ऐड कर देना, अपने आप ही कर देना. अब बस एक लास्ट चीज है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर द ईयर 2000. ईयर 2000 की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है. नीचे लिखो कहीं पे ईयर 2000, कोरिलेशन के नीचे, हाँ यहाँ लिख दो कहीं पे भी, आउटपुट फॉर ईयर 2000, आउटपुट फॉर ईयर 2000. कैसे निकालेंगे अब ये, 1993 के नीचे 2000 लिख देंगे. वहां पे नहीं लिख रही हूँ मैं, बिकॉज एक ने पॉइंट आउट किया वहां पे लिखने से सारे आंसर्स चेंज हो रहे हैं. एक्सेल ऑटोमेटिकली उसे भी कंसिडर कर रहा है फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप एंड इंटरसेप्ट एंड एवरीथिंग, तो वो मत करो, अलग से लिखो. अब क्या करें बताओ, अलग से कर दिया तो. हम फॉर्मूला कॉपी करके x की वैल्यू डाल देंगे. हाँ, तो या तो फॉर्मूला कॉपी करो या तो सीधा लिख दो इक्वल्स टू.
ए वाला सेल प्लस इंटू 2000 जिसके लिए हमें प्रिडिक्ट करना है वो वैल्यू हमारी एक्स वैल्यू बन जाती है। बस उस रिग्रेशन इक्वेशन में एक्स वैल्यू हम पुट करके वाई के लिए आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन नाउ एंड टेल मी, क्या किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नो? देन कुछ यहाँ पे जो आज क्लास में बच्चे आए हैं, कोई ऐसे हैं जिनके वाइवाज अभी रहते हैं, देना चाहते हैं आज? कोई है यस ऐसे बच्चे? हैं ऐसे? तो ठीक है, let me mark your attendance, then you all can leave. उसके बाद जिनको वाइवास देने only they have to stay. मैम मैं कल वाइवा दे दूं? क्यों, क्या परेशानी है? मैम आज लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। ओके, मैं कल परसों का मैं शेड्यूल बता दूंगी, अकॉर्डिंगली देना। ओके मैम। हर्ष, यस मैम। अनुष्का गुप्ता, यस मैम। जिनकी भी अटेंडेंस हो गई they can leave unless you have to give the viva. Ujaswin, Alek, यस मैम। Nimisha, ठीक है मैम। Anupriya, Sarvesh, Ayushi, प्रेजेंट मैम। Zainab, प्रेजेंट मैम। Harshit Garg, Karthik, प्रेजेंट मैम। Chetan, प्रेजेंट मैम। Tanush, Rhythm, प्रेजेंट मैम। Shubh, यस मैम। Nipun, Madhur, Deepak, यस मैम। Ruvit, प्रेजेंट मैम। Vedant, प्रेजेंट मैम। Ananya, Present, ma'am. Hardik Ahuja, Puneet, प्रेजेंट मैम। Anushka Garg, Vineet, प्रेजेंट मैम। Abhishek Gautam, यस मैम। Mayank, प्रेजेंट मैम। Tazia, प्रेजेंट मैम। Irfan, प्रेजेंट मैम। Aditya, Anuj, प्रेजेंट मैम। Pratibha, Hardik Garg, Tanzeem, प्रेजेंट मैम। Harshit Garg, Anshul Present, Yadav, ma'am. मेरा हर्षित बोलो। गर्ग 2720। ओके हर्षित। अंशुल यादव मेरी रह गई। किसकी रह गई? योगेश मैम 2669। मैम मेरी भी रह गई 2516। रुक जाओ, बाद में कर दूंगी। हर्षित गर्ग के बाद अंशुल यादव, ममता, प्रेजेंट मैम। भव्य, प्रेजेंट मैम। रचित, अनमोल, रूपल, सुमनदीप। अब बोलो किस किसकी रहती? 2516। 2529, मैम 2768 2669। 2768 68 और मैम 2669। 2761। यस मैम। 2669। 2669 आपने बोल तो दिया था बीच में, आपकी कर दी माँ। 2516। 2516। ओके, और कोई? 2478। 2478, आई थिंक आई कॉल्ड आउट योर नेम। मैम मैंने बोला था शायद आपने सुना। कर रखा है माँ, कर रखा है।
ठीक है, हो गई सबकी। अब यहाँ पे जो लोग हैं उन सबको असाइनमेंट, उन्हें वाइवा देना है। शुभ तंजीम काइंडली कंफर्म, शुभ तंजीम